Welcome everyone present here. As students, you know that we are all discussing the chapter poverty as a challenge. It is a challenge because it cannot be diminished just at once. The government has to start so many programs and so many efforts for a longer duration of time. Then slowly the poverty starts to decrease. So we had already discussed the meaning of poverty. Then we had discussed the two typical cases of two different families living in urban and rural areas. Then we had discussed the indicators of poverty, and then what does poverty show to us. Then we had discussed about the social scientist point of view about poverty. How does social scientists visualize the poverty? They had visualized in two ways: first social exclusion and then vulnerability. Then we had also seen the uh, data relating to the poverty in India. uh, then now we are on the verge of discussing the causes of poverty. We have now reached to the point where we have to discuss the causes of poverty. भारत में गरीबी के कारण क्या हैं? Now let us begin. See here, low level of economic development under the British colonial administration. The first and the foremost cause which is going to be held responsible for being India a poor country, and it is going to be the British rule. You should know that prior to 1947, India used to be the under the British rule, and Britishers were used to govern India with their sole purpose to drain the wealth and money from India to their own country. So India could not have overall development during those periods. So when after India got independence, the government faced this most prominent challenge of poverty, and even then initiating so many programs, government could not reduce the poverty dramatically because in last 250 years, India used to be under the governmentship of Britishers, and they have drained and exploited our wealth. So this is the first cause. Then what is the second cause? The failure of both at both the fronts: promotion of economic growth and population control perpetuated the cycle of poverty. The government could not control two things. First of all, the government could not make economic development in the same at the same pace as increasing population. तो जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, उस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे. तो जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे उतना पॉपुलेशन फिर बढ़ जाती थी, तो फिर बात वही रह जाती थी. अब मान लीजिए कि अब आपके पास मतलब 5 लड्डू है खाने के लिए और 5 आदमी हैं, सबको एक पड़ा. आपने 5 लड्डू से 10 लड्डू किया, तब तक आदमी भी 10 हो गए, तो फिर तो सबको एक एक ही मिला. तो कहने का मतलब कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पॉपुलेशन वाज जस्ट 36 करोड़. आज़ादी के समय भारत का मतलब आबादी मात्र 36 करोड़ थी, लेकिन धीरे धीरे आबादी भी बढ़नी शुरू हो गई, और उस आबादी को डिमांड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहे थे वो उसी के लेवल में रह गए थे. तो इसलिए गवर्नमेंट कुड नॉट make more rapid development of economic growth which can curtail the poverty in appropriate proportionate. So due to being the government failure at both the front to control the population growth and to make the rapid economic development resulted in being India a poor country. तो जिस हिसाब से जिस रफ्तार से मतलब आबादी बढ़ रही थी उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, जिसके चलते हमारे देश में पॉवर्टी बनी ही रही. थर्ड कॉज इरेगुलर स्मॉल इनकम. तो भारत में लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जिसको कि मतलब डेली वेजेस पर काम करना पड़ता है और उनका इनकम लो रहता है, जिसके चलते उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बेटर जॉब की, बेटर इनकम की, जिसके चलते वो गरीबी है. ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज. भारत में रिच हैं कुछ तो बहुत रिच हैं, उनका बहुत इनकम है, और पुअर है तो बहुत पुअर है. तो रिच और पुअर के बीच में गैप इंडिया में बहुत है, और इसके चलते भी हमारे देश से पॉवर्टी मतलब समाप्त नहीं हो पाई है. सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर हैं, कुछ सोसाइटी के लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो पैसा उनके पिताजी करते आते हैं वो बेटा भी वही करता है. अब वो अपना आर्टिसंस है, कारीगर हैं,
तो अब पॉटर का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं, मतलब जो भी उनका पेशा है, धंधा है, वो उसी पेशा में उनका बेटा भी चलाता है, तो उसे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और बेटर उनका वो एजुकेशन लेते ही नहीं है, इनकम बढ़े, जिसका चलते वो पॉवर्टी में ही रह जाते हैं और उसका इफेक्ट ओवरऑल देश पर पड़ता है। तो भारत में सोशियो कल्चरल फैक्टर से भी बहुत लोग सोशली और कल्चरली बैकवर्ड रहने के कारण, मतलब सोशली और कल्चरली वो बैकवर्ड रह गए, इसलिए उनका मतलब इनकम बढ़ा नहीं और वो पॉवर्टी में ही जीते रह गए। और इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत सारी होती हैं। लो इनकम तो एक मेजर फैक्टर है, जॉब जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, लोगों को अपना मतलब कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूंजी नहीं होना, कैपिटल नहीं होना, तो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आर्थिक कारण है जिसके चलते कि गरीबी भारत में बनी हुई। अब ये 5-6 जो मतलब इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, तो इसको डिस्कस करने के बाद अब हम इस मुद्दे पर पहुंचते हैं कि वेदर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिड्यूस द पॉवर्टी। क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा प्रोग्राम योजना है जो कि भारत से गरीबी को कैसे दूर की जाए, और इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम भारत में शुरू किए गए, कब से शुरू किए गए, उस प्रोग्राम का नाम क्या था और उससे कितनी मतलब गरीबी हटाने में मदद मिली। तो पॉवर्टी हटाने के लिए जो भी प्रोग्राम चले उसका नाम है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गरीबी निवारण उपाय। गरीबी हटाने के लिए देश की सरकारों ने क्या क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत प्रोग्राम चलाती है, लेकिन सबसे पहले देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू की है पॉवर्टी को डिमिनिश करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। तो इसमें देखते हैं द current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks। तो भारत में गरीबी हटाने के लिए सरकार की 2 योजनाएं हैं, 2 स्ट्रेटजी हैं। पहला क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देश में गरीबी मिटाना है, गरीबी हटाना है तो देश का आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास करना है कि मतलब कि भारत को एक एग्रो बेस्ड कंट्री से इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री के रूप में कन्वर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनकम बढ़े, तो लोगों में गरीबी खत्म होगी। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, नए नए काम होंगे, रोड्स बनेंगे, कंस्ट्रक्शंस वर्क्स होंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी, तो इस तरह से देश की गरीबी हटेगी। और दूसरा है कुछ प्रोग्राम्स चला के, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए जो कि कुछ पॉवर्टी में रहने वाले पुअर स्टेट में रहने वाले लोगों का को टारगेट करके वो प्रोग्राम बनाया जाएगा कि उनको कुछ बेसिक नीड्स प्रोवाइड किया जाए, उनको इनकम दिया जाए जो कि वो गरीबी के चंगुल से निकल सके। तो इसमें अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। पहला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। ये 2005 में शुरू हुआ था। अब इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो ये नरेगा के नाम से आया था और इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक कानून ही बन गया कि गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए अगर कोई काम नहीं मिलेगा, उनकी इनकम नहीं रहेगी, तो क्या ऐसे गरीब पड़े रहेंगे? नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको कम से कम रोजगार मुहैया कराए। अगर उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता है तो उनको रोजगार दे। तो ये कानून बना और इसीलिए इसका नाम पड़ा गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के नाम से आया। इट एम्स टू इंश्योर livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adults member volunteer to do unskilled manual work। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के इस योजना के तहत वैसे यूथ को, वैसे लोगों को जो कोई भी मतलब अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल मतलब शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, उनको कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी दी गई। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, परिवारों को
कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है, कानून बन गया, एक्ट हो गया, गारंटी एक्ट नाम ही है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रोजगार गारंटी एक्ट। तो ये नरेगा के नाम से 2005 में आया था। देखिए 100 डेज एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, इन ईयर फॉर ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार को, जो मतलब पुअर बीपीएल परिवार है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनको 100 डेज का मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। विद इन 5 किलोमीटर, उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा, ये नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ेगा। विद इन 15 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन वो डालेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके 15 दिन के अंदर उनको रोजगार मिलना है। तो फर्स्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम है महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की ये योजना है। ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की ये योजना है। अब एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP, विच वॉज लॉन्च इन 2004। तो नरेगा से पहले ये प्रोग्राम आया था, नेशनल फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। ये क्या कहता है प्रोग्राम? द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 नवंबर 2004 in 150 of the most backward districts of India with the objective of generating supplementary wages employment। तो भारत में 2004 में 14 नवंबर 1904 में ये योजना लागू की गई थी, काम के बदले अनाज योजना। भारत के 150 सबसे पिछड़े जिलों में, तो भारत के 150 पिछड़े जिलों में 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज योजना ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी, NFWP प्रोग्राम। और दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पीपुल हु आर प्रिपेयर्ड टू डू मैनुअल अनस्किल्ड लेबर। तो गांव में रहने वाले वो सभी लोगों के लिए रोजगार था जो कोई भी शारीरिक श्रम करने में सक्षम थे। इसमें कोई स्किल या कोई टेक्निकल जानकारी की नहीं ज़रूरत थी कि आपको मतलब कुछ टेक्निकल मालूम होगा तभी आपको काम मिलेगा। केवल आप लेबर का, मजदूर का, मेहनत का काम कर सकते हैं तो आपको काम के बदले अनाज योजना के तहत आपको ये काम मिलेगा। उस समय भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो फोटो दिया हुआ है। फिर तीसरा प्रोग्राम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और ये काफ़ी प्रचलित भी हुई थी, काफ़ी मतलब ये विख्यात भी हुआ था और चल ही रहा है। ये बेरोजगार युवकों को अपना धंधा शुरू करने के लिए, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना शुरू की थी। इसमें बैंक से लोन मिलता था। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। तो 1993 में ही बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत सरकार की ये योजना थी, जिसमें उन्हें बैंकों से लोन मिलता था। उस समय तो 1 लाख मिलता था, अब तो ज़्यादा बढ़ गया है। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हैज़ बीन इंटेंडेड टू गिव एम्प्लॉय टू ओवर 1 मिलियन पीपुल। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना थी। स्टार्टिंग 7 लाख माइक्रो वेंचर्स, मतलब 7 लाख छोटे छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए। जॉबलेस एजुकेटेड यूथ, मतलब शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, जिसमें 10 लाख युवकों को, शिक्षित बेरोजगारों को ये प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया गया था। इट रिकाउंट्स टू द स्टार्टिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थ्रू कॉमर्स सर्विस एंड बिजनेस में। तो इसमें यही था कि बैंक से लोन मिलता था और आप कोई छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं या छोटा गाड़ी, टेम्पू वगैरह चला सकते हैं या कोई धंधा शुरू कर सकते हैं। तो ये शिक्षित बेरोजगारों के लिए, और इसमें मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता था उनका जमा हो जाता था बैंक के पास, और जब ये धीरे धीरे लोन कमा कर लोन चुका देते थे तो फिर ये उनको सर्टिफिकेट मिल जाती थी। तो ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई थी, और ये भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था। तो 3 प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे अगले प्रोग्राम के बारे में।